أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سب وعلیکم کے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہیں سب کے؟ کیسے ہیں سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ خود کو اپنے زمان میں رکھے، صحت عافیت خیریت کا معاملہ رہے، اور ہر طرح کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، کامیاب نکالے اس میں سے جس مقصد کے لیے آزمایا جا رہا ہو. اللہ کرے کہ وہ مقصد ہمارے پورے ہوں اور کوئی ایسی بڑی آزمائش نہ آئے جس میں ہم فیل ہو جانے والے. تو اللہ کرے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارا چیک کرے ایمان جس لیول پر بھی، اس میں ہم اچھے اتریں، ثابت قدم اتریں، اللہ والے اتریں، نہ کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو کہ بچوں پر ہو، کسی بھی طرح کے ہو، تو ہم اپنے آپے سے باہر ہو جائیں اور ہمارے ہی ساتھ ہونا تھا، ایسا کیوں ہوا، یہ وہ ایسی ایسی چیزوں پر اترا. اس سے بچنا ہوتا ہے بہت زیادہ. چلیں ہم لوگ الحمدللہ کچھ اس میں سے جو دیکھ رہے تھے، شاید کسی ایک حدیث پر آدھے میں رکے تھے. چلیں جی ہاں، یہ والی بات چل رہی تھی کہ چلیں یہی حدیث شروع کرتے ہیں. سعید بن جبیر رضی رحمہ اللہ نے پوچھا، نہیں یہاں سے پڑھتے ہیں. حسین بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے کہا، تم میں سے کسی نے رات کو ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا تھا. پھر ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس وقت میں نماز میں مشغول نہیں تھا بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا. سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے پوچھا، انہوں نے پوچھا تو پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے بتایا کہ میں نے دم کر لیا تھا. انہوں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ ہمیں شابی نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کی بنا پر ہم نے دم کر لیا. انہوں نے پوچھا شابی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے فرمایا، بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث کی نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے ڈسنے کے سوا کسی اور صورت میں دم جائز نہیں. یہ سن کر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا، جس نے جو سنا اور پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا. البتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے. آپ نے فرمایا، پھر انہوں نے ایک دوسری حدیث بڑی پڑھی جو کہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی نہیں ہاں یہی سے ہے، میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئی. میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے، یعنی کہ نبی کی امت. انہوں نے دیکھا کہ بہت ایک نبی کے پیچھے اس کی بہت بڑی سی امت ہے، اور کسی کے ساتھ صرف ایک دو لوگ ہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ معلوم ہے کسی نبیوں کی قوم نے ان پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کے اوپر نہیں مانا تھا، تو وہ لوگ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے. جو ان کے اوپر ایمان لائے نا وہی ان کے پیچھے ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہی بات بتائے کہ دیکھا کہ کسی کے ساتھ تو بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ بس ایک دو لوگ ہی تھے یہاں تک کی، اور میں نے ایک نبی کے ساتھ ایسا بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. سبحان اللہ، کوئی ایسے بھی نبی تھے بیچارے جن کے لیے کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، تو وہ اکیلے ہی تھے. ایسی اثنا میں میرے سامنے، یعنی ایسے وقت میں اسی ٹائم میں میرے سامنے ایک بڑی جماعت آئی. میں نے سمجھا یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے.
پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب اور عذاب کے جہنم میں جائیں گے۔ یہ پارٹ ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا جبریل علیہ السلام نے کیا بتایا کہ یہ امت آپ کی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں سے 70,000 آدمی جو ہیں، انسان جو ہیں، وہ حساب کتاب کے کسی عذاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف اندر لے کے چلے گئے، یعنی کہ جہاں پہ وہ یہ سب حدیث بتا رہے تھے وہاں سے اٹھے اور اندر چلے گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان خوش نصیب 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آریاں کرنے لگے، یعنی وہ لوگ اس کے بارے میں اندازے لگانے لگے کہ 70,000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی عذاب کے جنت جائیں گے، تو یہ کون ہیں؟ تو ان لوگ آپس میں بات کرنے لگے۔ بعد نے کہا شاید یہ اوکے ٹائم ہونے کو ہے، بعد نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہیں۔ ان کو ایسا لگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے نا جیسے صحابہ، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ بعد نے کہا شاید یہ لوگ وہ ہوں گے جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ جو اسلام کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، کہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی کہ جیسے کہ یہ لوگ تو کفر میں پیدا ہوئے تھے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، جو لوگ مسلمان ہی پیدا ہوئے ہوں گے، مسلمان ہی مریں گے، ایسا انہوں نے سوچا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کہیں۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام نے آپ کو اپنی گفتگو اور جو باتیں تھیں وہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم کراتے ہیں، نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم کو دغواتے ہیں۔ دیکھیں پہلا پوائنٹ بتایا کہ یہ دم نہیں کراتے، دوسرا پوائنٹ بتایا کہ علاج کی غرض سے آگ کا علاج نہیں استعمال کرتے، تیسرا بتایا کہ فال نہیں نکالتے، ایسے فال نکالی جاتی تھی نا پرچیاں اچھال کے یا کوئی لکڑی گھما کے کہ کیا کام کر، وہ فال نہیں نکالتے، بلکہ وہ صرف اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھا اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے، مطلب دعا کے طور پہ انہوں نے کہا کہ تم انہی میں سے ہو۔ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا میں عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، یعنی تم سے پہلے عکاشہ نے اس دعا کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں کی کہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے یا کیا تھا، اس کو منع کرنا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ منع کرنے کے بجائے کہہ دیا کہ عکاشہ نے تم سے پہلے کہہ دیا دعا کا۔ تو خیر یہ 4 پوائنٹ اس کو بہت زیادہ ڈسکس کی ضرورت ہے، نیکسٹ کلاس میں دیکھیں۔ چلیں الحمدللہ ہم لوگ اس میں ایک اور چیپٹر ختم کر چکے تھے، اور فرائیڈے کو آپ لوگوں کا گوگل فارم ایک ریویژن آئے گا جس میں انشاءاللہ یہ جو آگے کے چیپٹرز آپ کے آئے ہیں وہ اس میں سے آئے گا۔ صفات، مخرج اور صفات نہیں ہوا آپ کا نا فارم میں، مخرج اور صفات، اور ہاں جی انشاءاللہ یہ جو ہے ادغامات جو ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ 3 چیپٹر اچھے سے ریوائز کر کے رکھیے نیکسٹ کلاس کے لیے، اور اس میں سے انشاءاللہ گوگل فارم آئے گا۔ اب آپ کا یہ چیپٹر بھی آپ کا اچھے سے پڑھا ہوا ہے، لیول 1 میں ہی آسان ہے، کچھ اس میں ڈیٹیلنگ اور آئی ہے، تو یہ پھر یہاں پر ہے تفہیم اور ترقیق، یعنی ہیوی اور باریک۔ ہیوی اور باریک آپ لوگوں نے ابھی تک لیول 1 میں اسی نام سے سنا ہے، ہیوی باریک، لیکن اب آپ اس کو عربی میں یاد رکھیں، تفہیم معنی ہوتا ہے ہیوی کرنا اور ترقیق معنی باریک کرنا۔ تو تفہیم کے لغتی معنی ہے موٹا یا بھاری پن، جس کو ہم ہیوی کرنا کہتے ہیں، موٹا یا بھاری پن اس ورڈ کی میننگ ہے۔ اصطلاحی معنی ہے یہ وہ بھاری پن ہے جو کہ حروف میں پایا
जाता है, यानी कि हर्फ में ये खुद पाया जाता है। और इसको कैसे करा जाता है, इसकी आवाज मुंह में गूंज के साथ होती है। ठीक है, जब मुंह में गूंजती है आवाज, वो उससे भारीपन कहते हैं, उससे मोटापन कहा जाता है। तो मुंह में गूंजती हुई आवाज को भारीपन और ये कहा जाता है। तफहीम का कायदा, इसको कैसे करा जाता है, जबान के पिछले हिस्से को नरम तालू की तरफ उठाया जाता है, यानी जड़ ऊंची हो जाती है जबान की, और हुरूफ का दबाव जो है वो तालू और जबान के बीच में रहता है। मुंह में जो स्पून वाला शेप एक और जबान का जो बनाया जाता है, गूंजती भी आवाज, यानी कि आप मुंह के अंदर जगह इतनी बनाती हैं कि वो ओ वाली जो साउंड है, इसको ही हैवी करके खौफ, खौ, ओ, आप देखिए जबान की जड़ ऊंची हो रही है और बीच में जो आवाज को हम ऐसा जबान को ऐसी शेप देते हैं ताकि आवाज मुंह के अंदर ही गूंजे, तालू में ऊपर जाके लड़े। अगर हम जबान को खोल देंगे पूरा, तो आवाज जो है वो होठों से बाहर की तरफ आ जाएगी, तो वो ऊपर नहीं टकराएगी, जिसकी वजह से कोई गूंज नहीं पैदा होगी, और वो हल्कापन कहलाएगा। तो भारीपन क्या है, मुंह के अंदर आवाज का गूंजना, ये भारीपन। इसका तरीका क्या है, जबान की जड़ जो है वो पीछे से ऊंची की जाती है और आगे से जबान को ऐसा शेप दिया जाता है कि हवा जो है, आवाज जो है वो तालू में जाके टकराए और उसमें गूंजे। इसको हैवीपन कहते हैं। फिर तरकीक, यानी कि हल्कापन क्या है, बारीकपन क्या है, इस्तिलाही मायने उसके, ये एक हल्कापन है जो हुरूफ के साथ पाया जाता है। इससे मुंह में किसी भी किस्म की कोई भी गूंज पैदा नहीं होती, यानी कि हमें आवाज हवा को अंदर नहीं रोकना होता है, बाहर ही कर देना होता है। तो ये हो गया हल्कापन और वो हो गया भारीपन, जो कि आप जानती हैं क्या है, कैसे अदा होता है, और लफ्ज़ से करते चले आ रहे हैं। तफहीम और तरकीक जो है वो आप इंशाल्लाह वर्ड जो है उसको सीखें। इसके अलावा तफहीम और तरकीक के लिहाज से अरबी हरूफ तहजी की तकसीम कितने कहाँ कहाँ पे बटे हुए, तो तीन तरह की किस्में। अभी तक हमने दो पढ़े थे, या हैवी या बारीक, अब आप तीन पढ़ेंगी। वो हुरूफ जो हमेशा मोटे रहते हैं, हुरूफ इस्तिआला, उस सदा तिनकिद, उस सौ खा के ऊपर पेश, सौ पे स्वाद पे फतहा के साथ शद्दा, उस सौ भैया कितना नहीं है उस सदा तिनकिद, दौद के ऊपर फतहा, गैन के ऊपर सुकून, दग क़ा के साथ दो कसरतें, दगतिन, फिर क़ाफ के नीचे कसरा, वा के ऊपर सुकून, खुस्सा दगतिन क़िद वा। तो ये है जो हमेशा मोटे रहेंगे। जबर जेद पेश फतहा कसरा दमा फतहा तान मद जो भी आ जाए, इनकी कंडीशन हमेशा साकिन हो, चाहे जिस भी कंडीशन में, ये हमेशा हैवी रहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, वो हुरूफ जो किसी वक्त मोटे होते हैं और किसी वक्त बारीक। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अभी तक ये मालूम था कि जी हाँ, ये ऐसे ही पढ़े जाते हैं, जैसे कि अल्लाह सुब्हानो ताला के नाम में लाम, यानी लाम ऐसा लेटर है जो कभी हैवी होगा कभी बारीक, तो हमेशा बारीक पढ़ा जाएगा सिवाय अल्लाह के नाम में, तो ये कभी हैवी कभी बारीक रहने वाला। इसी तरह रॉ, रॉ को सदक़े क़ैद में नहीं आता ना, जबकि आप देख रही हैं कि ज्यादातर हमें इसे हैवी करना होता है। तो ये कभी होता है कभी नहीं वाले में, कुछ कंडीशन से अगर ऐसे होगा तो इसको करना होगा, ऐसे होगा तो नहीं। तो ये वो है। फिर उसके बाद में अलिफ मद, वाव मद या मद नहीं हैवी होता। और अगर आप कफ और रू कहें तो रू तो वाव तो होठ बोल से ही आप पढ़ेंगी वैसे ही, लेकिन खालिदीन अगर वाला दौलीन दो जो आपने करा, तो उसके साथ जो अलिफ मद है तो वो आपको हैवी करना पड़ेगा, दुआ नहीं कहेंगे। वैसे अलिफ मद आ होता है ना, लेकिन अगर हैवी लेटर के साथ है तो अलिफ मद सिर्फ ऐसा है जो कि हमें हैवी करना पड़ता है, बाकी या मदिया और वाव मदिया को करने की जरूरत नहीं पड़ती। दी अगर होता है, दी खी अगर होता है तो उसमें हम या को हैवी नहीं कर रहे होते। इस तरह खू अगर होता है तो हम खो को हैवी करने के बाद वाव खुद गोल होठ से है, उसको हम हैवी नहीं कर सकते, लेकिन अलिफ मद को हैवी करना पड़ता है। तो ये तीन लेटर ऐसे हैं जिसको आप कभी बारीक कभी हैवी होते हैं। अलिफ
मद्दा कब हैवी होता है? जब वो हैवी लेटर्स के साथ मद हो। लाम कब हो? जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम में हो। रॉ की काफी सारी कंडीशन है जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं नहीं, रॉ का चैप्टर अलग है, यहाँ खाली मराठी बेस में। फिर थर्ड, वो जो हमेशा बारीक रहते हैं, आपको मालूम है कि इनके अलावा जो लेटर है जो भी बचे हुए हैं वो तमाम जो है हुरूफ इसके अंदर आएंगे और वो सब हमेशा बारीक पड़ जाते हैं। बा है, सा है, जा है, दा है वगैरह। इस चैप्टर में अब हम लोगों को क्या सीखना है? जिस तरह से आपने गुन्ना सीख लिया था पिछले लेवल में, और अभी इस लेवल में आपने गुन्ना के लेवल्स सीखे हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा करना है, कौन सा कम। और ये सारा फर्क जो है वो काफी हल्का सा ही होता है। इसको कोई तजवीद के माहिर ही लोग ही पकड़ सकते हैं। आम तौर पे अगर किसी को गुन्ना की रेंज नहीं मालूम हो और आप उसको अपना सबक सुनाएं, तो बस वो इसी बात पे ध्यान दे रहा होता है, हाँ गुन्ना करा तो है जी, गुना कर तो रही है, लेकिन वो रेंज क्या जा रही है, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, इसके ऊपर वो नहीं चेक लगा पा रहे होते हैं। तो जब तक आप तजवीद के माहिर माहिर नहीं होंगे, आप इस चीज को फिर इसी तरह मरातिब तफहीम के भी हैं, ठीक है, हैवी करने के भी दर्जात हैं। कौन सा कंडीशन जो है ज्यादा हैवी होगी, कौन सी कम हैवी होगी? कुछ में तो ऐसी है कि जबान के लिहाज से ही तरीका ऐसी है, यानी जबर के ऊपर जब हो या अलिफ मद्दा के साथ जब हो तब सबसे ज्यादा हैवी हो जाता है, और अगर पेश पर हो और तो थोड़ा कम रहता है, और जेर पर हो तो आप देखें काफी कम हो जाता है उसका हैवी बन। खी कहना हो तो खी में आप इतना ज्यादा इसको हैवी, सी ये सब इतना हैवी नहीं होता जितना सौ सौ हो जाता है। तो ये आम तौर पर हमारी जबान में ही आता है, लेकिन आप साकिन वाले को कितना हैवी करेंगे और फिर हरकत वाले को फतहा वाले को ज्यादा हैवी करना शुरू कर दें, क्योंकि वो सबसे बेस्ट लेवल का हैवी होता है, तब ये डिफरेंस आपका दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी वही बात है कि हल्का सा ही डिफरेंस है, लेकिन इसमें भी हैवी हैवी किसको ज्यादा हैवी करना है किसको कम, ये लेवल आप सीखें। किरात के आइम्मा यानी जो किरात के आलिम लोग हैं, उसमें से तफहीम के मरातिब के लिहाज से दो राय पाई जाती है, ठीक है। उसमें डिफरेंस है, लोग दो बातें करते हैं तो दोनों भी सही हैं। तो जितने भी तजवीद के लोग हैं वो ये दो बातों में से, जहां भी आपको मालूम है कि जब दो बातें आ जाती हैं तो उसमें से आपको अपनी किरात में कोई एक चॉइस कर लेनी रहती है कि मैं ऐसे पढ़ती हूँ। तो ये सवाल आपके एग्जाम में होता है कि आप कैसे पढ़ती हैं, आपने जो भी तिलावत सुनाई आपने कौन से लेवल यूज किए थे। दो तरह की राय हैं और दोनों ही दुरुस्त हैं, लेकिन कारी को चाहिए कि वो अपनी किरात में इन दोनों में से किसी एक का इख्तियार कर ले। यानी कि पढ़ रहे हैं तो कभी कभी पांच वाले पे चले गए, कभी तीन वाले। तो इसमें क्या फर्क है? तफहीम के मरातिब तीन मरातिब हैं, जिसमें ये 1 2 3 में डिवाइड किया हुआ है। फिर एक और राय जो है उसमें पांच लेवल्स हैं, ये पांच, ये 1 2 3 4 5। तो इसका एक अच्छा सा चार्ट बनाइए आप अपने पास, ताकि आप इस तरह से अलग अलग नादिक करके ऊपर आप ऐसे करके इसका डिवीजन कर सकती हैं। और आप उसमें फिर यहाँ पे इसमें ये पहली राय, उसमें आप डालिए कि इसमें तीन लेवल्स हैं, ठीक है। और दूसरी राय जो उलमा की है जो सही है, उसमें पांच लेवल्स हैं। तो उसमें फिर आप 1 2 3 ऐसे करके आप दिखा लीजिए, और फिर यहाँ पे पूरे 5 के लिख लीजिए, तब आपको दोनों में क्या फर्क है ये अच्छे से पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप शॉर्ट में या जैसे भी लिखना चाहें, जैसे कि तीन वाले में सबसे पहले फतहा आता है, दो चीजें आती है इसमें, फतहा आता है और साकिन आता है। हुरूफ हैवी लेटर साकिन हो और उससे पहले फतहा हो। इसी तरह फिर इसमें दम्मा आएगा और साकिन आएगा, उससे पहले वाले पे दम्मा हो। फिर इसमें कसरा आएगा और उससे पहले वाले पर सुकून। क्या तरीका है कि साकिन और उससे पहले वाले पर कसरा। तो जो तीन राय हैं उसमें आप देख रही हैं, फतहा फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर दम्मा, थर्ड लेवल पर कसरा, और जो साकिन अगर है तो वो उसी के साथ साथ। अगर आप फतहा के साथ या पढ़ेंगी, या के ऊपर जोर नहीं देते हुए, और खौ को अच्छा हैवी करेंगी, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल का अगर आप ले रही हैं, या खौ बहुत अच्छा हैवी करना पड़ेगा, क्योंकि आप खौ को फतहा के साथ लेके आ रही हैं। इसी तरह जब आप पेश करेंगे
तो खू खुद हैवी होगा सेकंड लेवल का, लेकिन अगर खा साकिन है और उससे पहले युख खा, तो सेकंड लेवल का आप हैवी करेंगी। और इसी तरह खा के नीचे अगर कसरा है खी, और आप इखराज खा को ई से मिला रही हैं, यानी कसरा से मिला रही हैं, तो वो थर्ड लेवल का हैवी होगा। तो साकिन इसके साथ साथ चलते चले तफहीम के तीन मरातिब जो है उसको देख लेते हैं। तो सवाल किस तरह से बनता है तजवीद में, इसमें पूछा जाता है कि मरातिब तफहीम के बारे में बताइए। तो आप जवाब देंगी कि इसमें उलमा की दो राय हैं, दोनों ही सही हैं। एक में 3 मरातिब है, एक में 5 मरातिब है। तो फिर आपसे सवाल होगा कि अच्छा जी 5 मरातिब वाला बताइए, तो आप बताएंगी सबसे ज्यादा हैवी इसे किया जाता है, फिर इसे किया जाता है, इस तरह से। फिर अगर फिर उसके बाद सवाल होता है कि आप किस तरह की तिलावत करती हैं, आप कौन से लेवल पढ़ती हैं। तो आप बताएंगी कि मैं 5 वाला यूज करती हूँ क्योंकि वो ज्यादा आसान है। मोस्टली मेरा भी 5 वाला ही चल रहा होता है। तो कभी कभी 3 वाला भी होता है, लेकिन एक सिटिंग में आप कोई एक लेके बैठे, ठीक है। वो एक सिटिंग में चेंज करते हुए नहीं रहना चाहिए। तो कारी को चाहिए कि कोई एक इख्तियार कर ले, फिर उसकी उससे तिलावत करे। तो 5 वाला ज्यादा आसान लगता है, और वैसे ही चल रहा होता है। पॉइंट ज्यादा है लेकिन आसान। इसमें आप देख रही हैं कि खौ साकिन हो लेकिन उससे पहले फतह हो, तो उसको बेस्ट लेवल का आपको हैवी करना पड़ जाता है। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, फतह कसरा दम्मा के साथ आप कर लेना आसान होता है, लेकिन इसमें साकिन को साथ साथ चलाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ जाता है। पहला पॉइंट आप देख रही इसमें, जब हुरूफ इस्तिआला पर फतह हो, यानी पहला पॉइंट क्या है, वही वाली बात कि हुरूफ इस्तिआला कुछ भी हो उसके ऊपर फतह हो, या हुरूफ इस्तिआला पर सुकून हो। तो जैसे कि पहला पॉइंट इनका था कि इसके ऊपर फतह हो, या जी नहीं खा करने से, या हुरूफ इस्तिआला पर सुकून हो और उससे पहले वाले पर फतह हो। तो इसके पहले कोई भी लेटर हो लेकिन उसके ऊपर फतह हो, जैसे कि अभी हमने बताया था खो और या खो, खो या खो को अच्छा हैवी करना है, फर्स्ट लेवल का हैवी करना है, ठीक है। तो फतह में आप ये भी देख रही हैं कि ये भी फतह होते हैं ना। अगर अलिफ मद्दा है तो चाहे मद के साथ हो अलिफ, यानी कि इसको आपने देखा इसके ऊपर फतह है, आगे चाहे मद हो चाहे ना हो, जो भी हो वो फतह है, तो वो फिर आप इसको फर्स्ट लेवल का हैवी करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल का। इसी तरह सेकंड लेवल में आपके आएगा पेश, जब हुरूफ इस्तिआला पर दम्मा हो या हुरूफ इस्तिआला पर सुकून हो और उससे पहले वाले पर दम्मा हो, तो इसका भी आप सेम इसी तरह देख सकते हैं कि कौफ हो उसके ऊपर दम्मा हो, या फिर कौफ के ऊपर सुकून हो और उससे पहले पे दम्मा हो। तो ये सेकंड लेवल का हो जाएगा। तो खू और नुक, नुक ये सेकंड लेवल का हो जाएगा। तो इसमें आपको जब आप कलकला करें तब भी हर हर जगह पे आपको इसके लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ये 3 वाला लेंगी, क्योंकि इसमें साकिन भी आगे पीछे चल रहे हैं। 5 वाले में आसान है, मैंने साकिन को चौथे नंबर पे दे दिया है, सारे साकिन एक जैसे। तो हैवी लेटर जब साकिन हो चाहे से पहले कुछ भी हो, सब एक जैसे। तो आपको जो आसान लगे आप वो चूज कर लें और अपनी तिलावत आपको, लेकिन आपने क्या चूज किया, आप कैसे पढ़ेंगे, ये आपको बताना है इंशाल्लाह, ठीक है। थर्ड पे आ जाएगा कसरा। देखिए आप यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वाह, तो फिर चाहे ये सौत के ऊपर हैवी, सौत के ऊपर सुकून आ गया है, इससे पहले दम। इसके अलावा वाह जो है वो अगर वाह मद्दा भी होता तब भी आप सेम उसी तरह पढ़ती, क्योंकि आपको उसमें क्या देखना है कि आपने मम्मा देखना है बस। कसरा वाले, अगर हुरूफ इस्तिआला पर कसरा हो, या जैसे कि ये, या उससे पहले ये साकिन पर हो और उससे पहले वाले पर कसरा हो गई, ईशा हुआ। फिर रुज़िक़ना, रुज़िक़ हल्का हल्का बारीक रखेंगे क्योंकि आप कसरा से ले जा रहे हैं। रुज़िक़, रुज़िक़ना कसरा के साथ सबसे कम हैवी लेवल जो है इसको देंगे। चलिए सब समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है लेवल्स में, कब ज्यादा हैवी होगा कब कम। फतहा, गम्मा, कसरा, और इन्हीं के साथ इनके साकिन। इसका एक शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, क्योंकि ये डिटेल में लिखा होना और एक साथ एक जगह पे लिखा होना बहुत फायदा देता है आपको याद रखने में, कि शॉर्ट नोट
फ्लो चार्ट बना हुआ हो, ठीक है। चलिए अब आप इसका दूसरा पार्ट जो है वो 5 लेवल वाला जो है, उसमें क्या फर्क है। इसमें सबसे पहले नंबर पर अलिफ मद है। जाहिर सी बात है, जब आप 100 कहें तो आपको टाइम ही इतना कम है, आप उसे कैसे पूरे मुंह में गूंजता हुआ और हैवी बनाएंगी। लेकिन अगर आप 100 कहेंगी अलिफ मद के साथ, उससे टाइम के साथ पढ़ेंगी, तो आप उसको और ज्यादा अच्छे से हैवी कर सकती हैं। तो जब अलिफ मद्दा के साथ हो, अलिफ मद के साथ, तो वो सबसे हाई बेस्ट लेवल पर हैवी होते हैं। हैवी लेटर, हैवी लेटर जब अलिफ मद्दा के साथ हो तो वो नंबर 1 के हैवी होंगे, ठीक है। ये एक इनका अलग हो गया। अलिफ मद्दा सबसे हाई लेवल का, इसको हैवी करना रहे। सेकेंड लेवल जो है इसका फतह का है। तो जैसा कि जबान की पोजीशन बनावट ही ऐसी है कि हमारे फतहा जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे हैवी हो पाते हैं, तो इसको इन्होंने बेस्ट लेवल ही दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने फतहा और मद को अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे क्या था, इन्होंने यहाँ मद को अलग नहीं किया था, इन्होंने बताया कि बस फतहा हो चाहे मद हो, फतहा हो, सबको एक लेवल का, यहाँ तक कि चाहे साकिन ही हो लेकिन फतहा के साथ हो, तो सबको आप हाई लेवल का हैवी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आसान हमें लगता है कि अलिफ मद्दा जो है वो वाकई खुद ब खुद ज्यादा हैवी हो जाता है। वो फर्स्ट लेवल का हो गया। सेकेंड लेवल पे फतहा, फतहा भी अच्छा हैवी हो जाता है। लेकिन ऐसे जब आप हरकत पढ़ रही थी, पो पीकू, तो पो सबसे अच्छा जाता था, लेकिन ती देखिए सबका ती बन जाता था, तो कोई कहने में मुश्किल होती थी। तू भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकल जाता है, तो वो सेकेंड लेवल का हो गया। ती काफी कम, पो पीकू ये हो गया अपने लेवल के हिसाब से। तो जब फतह के साथ हो तो सबसे ज्यादा हैवी हो जाता है, जो कि इसमें अलिफ मद से कम पर लिया गया है। तो अलिफ मद के नीचे आएगा और सेकंड लेवल आप इसे देंगे। फतहा को सेकंड मिल गया है और फर्स्ट वाला अलिफ मद्दा को मिला है। थर्ड में पेश, सिर्फ बम्मा, अगर हुरूफ इस्तिअला पर बम्मा लगा हो तो वो थर्ड लेवल का, यानी कि इसी के जैसा कि हमारा मराते गुना सॉरी मराते लेवल 3 वाला जो है, उसमें भी सेकंड लेवल पर ये आता है। तो फतह के बाद जो भी लेवल मिलेगा, जो कि इसमें हमारा थर्ड कहला रहा है, तो वो पेश को मिल गया। इसी तरह अब चौथे पर साकिन को मिला कि जब हुरूफ इस्तिअला साकिन हो, इसके ऊपर अब हमें नहीं नजर रखनी है कि पीछे पेश था कि कसरा था कि दम्मा था या रिब। तो ये यम जो है वो चौथे लेवल का हो गया, यानी कि पेश से भी कम, फतह से भी कम, अलिफ मद्दा सबसे कम यम, चाहे वो फतह से ही क्यों ना पढ़ा जा रहा है। तो साकिन को सबको आप फोर्थ लेवल पे लेके आ जाइए कि चौथे लेवल पे के बराबर होता है। फिर पांचवें लेवल पर आपके आएंगे कसरा, जो कि सबसे कम हैवी हो पा रहे होते हैं। कंडीशन पोजीशन ही ऐसी हो जा रही होती है उनकी कि वो कम हो पा रहे होते हैं, तो सबसे कम लेवल का मिला हुआ है। बस आप उसको हल्का कई भी हैवी है कसरा के साथ है, वो भी कई भी कसरा के साथ है, बिल्किस कई आप देखें इतना सा हैवी किया और काफी हो गया। वरना आप फतह के साथ करें तो अच्छा, आपको पूरी जबान को अच्छा पूरी एक पोजीशन देनी होती है, लेकिन कई आप कहें तो इतनी ज्यादा हम नहीं दे पा रहे होते। ये सबसे लास्ट लेवल हो गया 5 का इसका। अस्सलाम वालेकुम जी, मैम। वालेकुम अस्सलाम फर्स्ट वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट जो 3 हैं वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस था हमारी तरफ। प्लीज एक ब्रीफ में खाली आप जो बता रही थी फिर से रिपीट कर दें मैम, जो स्टार्टिंग में 3 आपने बताए थे। जी, पहले वाले 3 जो है वो आसान है जी। उसमें आप देखें ऐसे करें, अगर आप इस तरह से कर लें कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे आपके क्या है, नंबर 1 पे फतह है, ठीक है, नंबर 2 पे जी दम्मा है, नंबर 3 पे कसरा है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ इनके वो भी आते रहते हैं जो कि साकिन है। अब अगर हैवी लेटर पर आपका सुकून आ गया है लेकिन जी इससे पहले फतह है, तो वो नंबर 1 का आपको हैवी करना होगा जी सबसे ज्यादा। लेकिन अगर पेश लगा है और इसी के साथ साथ इनके ये भी चलते रहते हैं कि अगर आपका साकिन अगर है और उससे पहले से पेश है, तो आपको सेकंड लेवल का हैवी करना होगा। जी यानी इनके साकिन इन्हीं के साथ जी साथ चलते रहते हैं। और अगर जी इसमें कसरा है, खौफ के साथ कसरा है, तो फिर आप सुकून पे भी आपका ये सुकून है लेकिन इससे पहले कसरा है, तो फिर वो थर्ड लेवल का होगा। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है करने में कि आपको इसको भी लेवल देके चलना है।
जबकि 5 वाले जो हैं उसमें आप सबसे नंबर, अब ये समझ में आ गया आपको? जी उस्ताजा जी। हाँ जी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आसान है। यानी कि फतहा, दम्मा, कसरा और उसी के साथ साथ उनके साकिन। जी 5 वाले में क्या डिफरेंस है? अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ना आसान होता है, आपको जो आसान लगे आप इख्तियार कर सकती हैं। 5 वाले में क्या है? 1 2 3 4 और 5। उसमें 5 वाले में क्या क्या है कि सबसे पहले उन्होंने अलिफ मत को ले लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप फतहा के साथ इसको खींच रही होंगी तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, आप अच्छे से उसको हैवी कर सकती हैं बनिस्बत इसके कि सेकंड लेवल पर आपका सिर्फ फतहा है। तो पहले वाले पर अलिफ मद्दा फतहा के साथ यानी मद, सेकंड लेवल पर फतहा, थर्ड लेवल पर दम्मा, फोर्थ लेवल पर सारे साकिन, फिफ्थ लेवल पर कसर। यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी आ जाए, फतहा, दम्मा, कसरा, सबको आप एक लेवल का करेंगी, फोर्थ लेवल। ये आसान होता है। वरना जो वो आप उसके साथ करें कि हर एक को आप चेक करें कि आप फतहा के साथ आपने कम हैवी कर दिया, तो उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे फर्स्ट लेवल का हैवी करना है। तो ये 5 हैं जरूर नंबर के, लेकिन ये करने में आसान होता है। ये पांचों भी समझ में आ गया आप लोग के? जी उस्ताजा जज़ाकल्लाह खैर। जी, और सभी के समझ में आ गए? किसी को कुछ पूछना, रिपीट करना तो नहीं है? नेक्स्ट क्लास में से रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर भी एक बार में खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, चैप्टर तफहीम ये वाला रिपीट हो चुका है, फिर भी अगर कोई सवाल तो नहीं है? मैम मुझे कुछ पूछना था। जी बोले। जैसे अगर इस्तिआला, हुरूफ इस्तिआला पर फतहा है और उसके पहले कोई ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरी नहीं, हरकत आ जाए? आपको फिर वो नहीं देखना है, बस हुरूफ इस्तिआला पर फतहा आ गया, बस आप उसे इसी पर नजर रखें। अब इससे पहले आइन है, हुरूफ हल्की है या क्या है, उसके ऊपर आपको नजर नहीं रखना है, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस आपको उसी पे देखना है कि इसके ऊपर क्या। जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है उसमें भी फर्स्ट फर्स्ट 3 पॉइंट में साकिन जब होगा तब आपको देखना है कि पीछे क्या है। फतहा है तो नंबर 1 पर आपको हैवी करना है, दम्मा है तो नंबर 2 पे हैवी करना है, कसरा है तो नंबर 3 पे। और आपने ये भी बताया कि अगर फतहा है और ऐसा भी हो सकता है कि फतहा है और उससे पहले फतहा हो नहीं, तो। फतहा है तो बस आपको उसी पे देखना है, उससे पहले भी फतहा हो ओके क्या, उससे पहले पहले वाले लेटर पर क्या है वो नहीं देखना। जी हाँ, जब साकिन है तो उससे ओके पहले वाली कसरत देखना है कि क्या है, ये ओके हरकत देखना है। जी जी। जी जज़ाकल्लाह खैर। ओके, इसके इसी के साथ यहाँ पर एक ये भी दिया हुआ है, वही जो कभी हैवी होते हैं कभी नहीं। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैम अगर इस्ताला हूँ पे साकिन हो और उससे पहले कसरा हो तो तो आप कौन से लेवल में पूछना चाह रही हैं, 3 वाले पॉइंट में या 5 वाले में? मैम 3 वाले में। 3 वाले में वो थर्ड लेवल पे जाता है, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा था कि अगर नंबर 1 क्या है, फतहा वाले, फतहा खुद उसके ऊपर फतहा हो या साकिन के पहले फतहा हो, तो ये ऐसे करते हुए दम्मा सेकंड का होता है और थर्ड जो है वो कसरा का होता है। अगर वो साकिन है और उससे पहले कसरा है तो वो सबसे कम लेवल का होगा थर्ड वाले में। जी, और मैम जो 5th वाले में है साकिन हो तो मैम उससे पहले की उसकी हरकत नहीं देखी जाएगी? नहीं, आप साकिन है तो आप चौथे लेवल पे उसे हैवी करेंगी बस। ठीक है, तो उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है कि फतहा है, कसरा है, दम्मा है, क्या है। बस आपने देखा साकिन है तो आपको फतहा और दम्मा से कम वाला लेवल उसको दे देना है, कसरा से ज्यादा वाला, बस, क्योंकि सबसे लास्ट लेवल उसका कसरा है 5वें वाले में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलिफ मद को कैसे हैवी करके पढ़ना है वो देख लिया। तो वही बात लिखी है कि जब अलिफ मदा हुरूफ इस्तिआला के साथ हो तो उससे भारी पड़ा जाएगा,
हम वा ही कहते हैं, अलिफ को भी हैवी करेंगे, वा नहीं कहते हैं ना, तो इस वक्त ये अलिफ मद जो है वो हैवी पढ़ा जाएगा। और वैसे बाकी जगहों पे बारीक पढ़ा जाएगा, तो कभी हैवी कभी बारीक में हैवी के साथ हैवी करना है इसे, बारीक के साथ बारीक। इसी तरह लाम लफ्ज जलाला में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब अल्लाह ताला के नाम से पहले फतहा और दम्मा हो तब भारी पढ़ा जाएगा अल्लाह का नाम, और कसरा हो, कसरा नहीं कसरा हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। हम सभी को मालूम है ज़हबल्लाहु, अल्लाह का नाम में लाम हैवी होगा और फिर कभी बारीक भी होगा, जैसे बिल्लाह। फिर इसी तरह रॉ के चैप्टर में रॉ को कब भारी होना है कब हल्का होना है, ये हम लोगों ने अच्छे से सीखा है, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं दिया। लास्ट चैप्टर हमारा मद है। अल्हम्दुलिल्लाह आसान चैप्टर था, रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलें, ओके आज का सूरतुल इंसान की आयत नंबर 6 से है। ओके, शेयर करते हैं, सिर्फ तिलावत करेंगे, फिर आप लोग जल्दी डिवाइड हो जाए ताकि अच्छा टाइम मिल सके कई कई बार सुनाने। कैसे जा रहा है आप सबका? हमने कहा था कि आप लोगों को कुछ अगर कहना है तो मेरे पर्सनल पर या क्लास में भी जो आप सजेशन कर सकती हैं, आपको लगता है कि अकेले में कहना चाहिए, किसी टीचर के बारे में, किसी और कोई कोर्स के बारे में, कुछ भी अगर आप कहना चाहें तो आप सब मोस्ट वेलकम। आप लोग जरूर हमें राय दें, ये मेरी सुधार के लिए होगा, ना कि मेरी गलती निकालने का होगा। तो जो भी आपको लगता है इंशाल्लाह जरूर बताएं। चलिए, मैम तिलावत हमें करेंगे। कहना था कि हाँ, लास्ट कुछ रिकॉर्डिंग्स क्लास की शेयर नहीं हुई थी हाँ बीच में कुछ बीच रिकॉर्डिंग में। में मसला आ गया था। वो रिकॉर्ड तो कहीं जी शो ही नहीं हो रहा था, कहाँ चली गई, जूम में कुछ मसला आया था, तो बाद में भी नहीं आई क्या? नहीं, वो तो उस्तादा ने बताया कि वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, मतलब आई नहीं। वो तो तो फिर उन क्लासेस में ऐसा हुआ होगा कि रिकॉर्डिंग जो है वो टीचर अगर बिना लेती हैं जिसमें कोई तजवीज नहीं बताई जा रही है, नहीं तो फिर नहीं, वो वो रिकॉर्डिंग नहीं, जो इस्तेमाल आप ले होती है। रहे थे ना बीच में 2-3 लेक्चर्स की नहीं आई अच्छा, थी। तो वो एक्चुअली थोड़ा रिवाइज करने के लिए अच्छा पड़ता है, दोबारा से सुन लेते हैं रात में हाँ जी, बैठ के फायदा तो देता है जी। क्लास टीचर के बिना आप क्या बच्चे। कहती हैं? बस। जी जी, जी टीचर बिना आप बताएंगे कौन? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, किसी डे की रिकॉर्डिंग नहीं आई है क्योंकि बीच में इंशाल्लाह। थोड़ा सा मसला आया था ना, देखें आप रीचेक करें, कुछ नहीं रह गई नहीं, और अब आ गई। जब ये मसला आया था तो उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग चेक करके भेजी थी, लेकिन हो सकता है एक आध क्लास उसमें रह गई हो। तो इंशाल्लाह पर्सनली आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए कि किस डेट की क्लास जी रिकॉर्डिंग नहीं आई है, तो हम इंशाल्लाह चेक करके और उसको टीचर आलिया को देते हैं। इंशाल्लाह। जी, जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम टीचर बिना देख रही हैं, और बीच में थोड़ा सा भी Zoom में कुछ प्रॉब्लम आई थी, हम लोग ने इसको रिन्यू करा था, तो उसके बाद से रिकॉर्डिंग गायब हो गई सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करके फिर वापस आ गई थी, तो उन दिनों में हो सकता है कुछ मिस हो गई, तो आप दिन डेज याद दिला दीजिए, वो चेक करके रिकॉर्डिंग का पूरा काम देखते हैं इंशाल्लाह। उसके अलावा भी अगर नहीं भी मिलती हैं तो इंशाल्लाह अभी पूरी पीडीएफ फिर से आप देख लीजिए कि टाइम है हमारे पास और खत्म होने को है कोर्स, तो बहुत अच्छे से रिवीजन फिर से कराया जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें आप सवालात अपने निकाल के रखें, रिपीट करवाएं, जैसे अभी कितनी बार लोग अगर बताने के बाद भी किसी को अगर थोड़ी भी डाउट रहता है तो इजीली पूछें, हम बताएंगे इंशाल्लाह, मिस कुछ नहीं होने देंगे सर। ओके, तिलावत सुनिए। जो खास चीज़ है उसी को हम खाली बताएंगे। और आज आप लोग ध्यान दीजिए, जो मराठी आप लोगों ने हैवी के पढ़े हैं, ओके 32-33 टीचर बिना देखिएगा। ओके,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عینا یشرب بها عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ تو را میں بھی آپ وہی دھیان رکھیے، کیونکہ یہ کبھی ہیوی کبھی باریک ہوتا ہے، لیکن جب ہیوی ہوگا تو اس کے لیولز ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ آپ نے پہلے یفجرو، رو جو تھا وہ سیکنڈ لیول کا ہے، لیکن تفجیرو یہ جو ہے یہ فرسٹ لیول کا ہیوی ہے۔ اور اگر 4 مراتب میں دیکھیں تو تفجیرہ فرسٹ لیول کا ہے، تفجیرو جو ہے فرسٹ لیول کا ہے، لیکن یفجرو جو ہے وہ تھرڈ لیول کا۔ تو لیول آپ ابھی چارٹ بنا لیجیے، ابھی ٹیچر آپ سے پوچھیں گے، آپ دیکھ دیکھ کے بتائیے، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یوفون بالنذر ویا، نذری بالکل باریک رکھنا ہے، بالنذر ویخافون، خوفون خوف فرسٹ لیول کا، دونوں ہی کنڈیشن میں یہ فرسٹ لیول پر آتا ہے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، رخابہ کریں گے، اور مستطیرا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جو ہے وہ اگر آپ 3 لیول والا لے رہی ہیں تو اس کو سیکنڈ لیول پہ کریں گی، ورنہ فورتھ لیول پر ہی آئے گا، یہ قی سے کم رہے گا، یوپو۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ نطعمكم تو آپ قلقلہ کریں گی، کون سے لیول کا ہیوی ہونا ہے دیکھیں، لوجہ اللہ، وجہ سین کو بالکل سیدھا، اللہ کا نام باریک، جزاء مد کون سا ہے، کمپلسری یا چھوڑ سکتے ہیں، دیکھ کے بتائیے گا۔ انا نخاف من ربنا، اور جو ہیوی ہوگا کیونکہ اس کے اوپر فتح ہے، من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، دونوں ایک جیسے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا۔ ہماری رو پر رکیں گے تو اس کا الف پڑھا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔